Okay, good morning students. We are discussing the MySQL functions. So let's discuss date and time functions, right? So date and time functions operate on the value of date type, date data type. There is so many function to display the current date. This function, so suppose cur date, current underscore date. Now there are so many functions that are used to display the current date, right? This is the syntax. You will write this function with select cur date, current underscore date, or current underscore date without bracket also. It returns the current date as a value in YYYYMMDD or YYMMDD format, depending on whether the function is used in a string or the numeric context. Current date and the current date with the bracket is the synonym of cur date function. So for example, select cur date, it will display your current date in the system. Okay. So write a query to display date after 10 days, यानी कि करंट डेट के बाद जो भी 10 डेज की जो वैल्यू है वो आपको शो करनी है. So you will write select cur date plus 10. So you can also use the arithmetical operation also, right? In the same way, date function, this function extracts the date part of the date time expression. Date function you can see with the example, आपने कोई भी डेट पास की विद टाइम आल्सो, उसमें टाइम भी आपने पास किया है, बट डेट फंक्शन क्या काम करेगा, जो डेट पार्ट है उसको एक्सट्रैक्ट कर देगा. सिमिलरली मंथ पार्ट क्या करेगा, मंथ फंक्शन, दिस फंक्शन रिटर्न्स द मंथ फ्रॉम द डेट पास्ट, ये खाली उस डेट में से जो मंथ है उसको एक्सट्रैक्ट कर देगा. सपोज मंथ, अब आप देखिए YYYMMDD फॉर्मेट होता है, तो मंथ आपका 2 है इसके अंदर. सो यू कैन सी द आउटपुट विद दिस कमांड. मंथ नेम, दिस फंक्शन रिटर्न्स द नेम ऑफ द मंथ ऑफ फॉर ए डेट. यू कैन सी विद एग्जाम्पल सेलेक्ट मंथ नेम, तो 5 जो है आपका वो मे है, मंथ नेम इसने शो कर दिया. डे फंक्शन, दिस फंक्शन रिटर्न्स द डे पार्ट ऑफ द डेट. इसमें से आप डे फंक्शन से आप जो है डे निकाल सकते हैं, जैसे 13, जो भी डे इसके अंदर आपने पास किया होगा वो डे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा इससे, राइट? सिमिलरली ईयर, दिस फंक्शन रिटर्न्स द ईयर पार्ट ऑफ द डेट, तो जो भी डेट आपने पास की है उसमें से जो ईयर का पार्ट है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा इसमें से, राइट? नेक्स्ट फंक्शन डे नेम, दिस फंक्शन रिटर्न्स द नेम ऑफ वीकडे. Understand it with an example. Write a query to display the name of weekday for the date 3rd Feb. अब 3rd Feb को किसी भी ईयर की आपको डे पता करना है, तो you have to write select day name or Tuesday, Thursday, whatever is there, it will show the answer. Now day of month, महीने का कौन सा दिन है, तो this function returns the day of month. It returns the day of month for the date in the range of 1 to 31, returns 0 for the dates such as, आपको इस तरह से पास करेंगे, तो you can see it with an example. तो डे की तरह ही काम करता है. डे ऑफ मंथ, महीने का जैसे 3 है तो 3 डेट है इसके अंदर, तो 3rd डे हो गया वो आपका. डे ऑफ वीक, सप्ताह का दिन कौन सा है, दिस फंक्शन रिटर्न्स द डे ऑफ वीक. सो यू कैन सी इट विद एन एग्जाम्पल. डे ऑफ वीक, कोई भी डेट आपने पास की उसका डे ऑफ वीक क्या है, राइट? 6 डे है, 5th डे है, 4th डे है. तो इन दिस वे इट विल गिव द आउटपुट. देन डे ऑफ ईयर, साल का कौन सा दिन है, जो भी डेट आपने पास की है. अगर आप 1 जनवरी को आप फर्स्ट डे मानते हैं, इसी तरह से 31 जन को 31 डेज हो गए, फिर महीने के दिन जुड़ते चले जाएंगे, राइट? तो डे ऑफ ईयर आपका क्या बनेगा, जैसे ये डेट आपने पास की, डे ऑफ ईयर, सेलेक्ट डे ऑफ ईयर 2009 to 13, तो ये आपका 44 डे बनेगा. यू कैन काउंट 31 डेज तो हो गए आपके जनवरी के,
और 13 डेज हो गए आपके फरवरी के, तो 31 और 13 टोटल 44 डेज। now function is also used to return the current date and time. So if you want to show the current date and time, you can use the now function. For example, select now, you can see whatever is the current date and time on that time, it will show accordingly. Next function is sysdate. This function returns the time at which the function executes. It returns the current date and time as a value in the YYYYMMDD format, or hour, minute, second. You can see आपने क्या सिलेक्ट नाउ कॉमा स्लीप टू कॉमा फिर नाउ, आपने 2 सेकंड का टाइम दिया। तो आप दोनों के एग्जीक्यूशन का टाइम देखिए, फर्स्ट में है आपका 15, 32, 34, इसमें देखिए। तो अगर आप थोड़ा सा भी इसमें टाइम में वो देते हैं चेंजेस, तो यहाँ पर देखिए स्लीप टू जब आप करेंगे इसके अंदर, यानी कि 2 सेकंड का टाइम वेट करके आपने फिर sysdate फंक्शन को वो किया, तो इसके अंदर वो 2 सेकंड ऐड हो जाएंगी, 15, 33, 15 और या 15, 33, 17, यानी कि जिस टाइम पे वो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है बस कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का फ़र्क होता है। अदरवाइज तो sysdate फंक्शन भी जो है आपका वो करंट डेट और टाइम डिस्प्ले करने के काम आता है, राइट। So you have to do practice of these functions, even they are already done by you in 11th class, right. Suppose this is a table, and according to this table some commands are given, give the output of the following statements, right. So lcase, mode, power, substr, these are the normal functions, you can do yourself. So you have to do practice. Some questions are given at the end of this chapter, right. You can see some questions are given. So according to these given questions, you have to do practice. Okay. So now let us discuss some aggregate functions, or they are also called the group functions, right. MySQL also support and provide the group functions or aggregate functions. As you can make out that the group functions or aggregate functions work upon the groups of rows rather than ऑन अ सिंगल रो, यानी कि ग्रुप ऑफ रोज के ऊपर जो काम करते हैं ये आपके 5 फंक्शन होते हैं, एवरेज है, मीन है, मैक्स है, काउंट है, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। सपोज दिस इज ए टेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल एवीजी फंक्शन, यानी कि एवरेज फंक्शन, दिस फंक्शन कंप्यूट्स द एवरेज ऑफ गिवन डाटा। सो यू कैन सी सेलेक्ट एवीजी सेल, और ये जो एवरेज आगे इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है ये आउटपुट के ऊपर लिखा हुआ आएगा, दिस इज ऑप्शनल, यू कैन राइट और नॉट। सो यू कैन सी आपने सैलरी का जो है वो एवरेज निकालना है, तो ये टोटल सैलरी जो है पहले ऐड होगी और फिर टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड से डिवाइड हो जाएगी, दैट विल बी द आंसर। Next is count function. This function counts the number of rows in a given column or expression. तो आपके उसमें कितने टेबल के अंदर या किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं या टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, वहाँ पर जो आर्गूमेंट आपने पास किया है वो शो करेगा। दिस इज फॉर एग्जांपल सेलेक्ट काउंट स्टार, और ये टोटल आउटपुट में आएगा फ्रॉम एमपी। ईएमपी के अंदर टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं, जैसे 14। काउंट नंबर ऑफ जॉब्स इन टेबल एएमपी, सेलेक्ट काउंट जॉब, किसी पर्टिकुलर कॉलम के आपने काउंट करने हैं तो आप उस कॉलम का नाम लिखिए, नहीं तो काउंट के अंदर स्टार लगाइए आप टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड काउंट करने के लिए। तो यू कैन सी काउंट की भी उतनी ही वैल्यू है। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट जॉब्स आर लिस्टेड इन द टेबल,
सो सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट जॉब, आपने डिस्टिंक्ट वर्ड लगाया है तो आपको पता है डिस्टिंक्ट क्लोज क्या काम करता है, जो वैल्यू एक बार काउंट होगी वो सेम वैल्यू दोबारा से उसके अंदर काउंट नहीं होगी। डिस्टिंक्ट का मतलब आप समझते हैं, डिस्टिंक्ट क्लोज रिमूव्स द डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स इन द आउटपुट और इट ओनली इंक्लूड द यूनिक वैल्यूज, जो वैल्यू एक बार आ गई उसको दोबारा से काउंट नहीं करेगा। तो डिस्टिंक्ट आपने लगा दिया है, तो नाउ यू कैन सी, ठीक है। नेक्स्ट है मैक्स फंक्शन, जो भी आर्गूमेंट आप पास करेंगे, चाहे वो हम खुद की वैल्यू पास करें या किसी टेबल की का कोई फील्ड पास करें, तो उसमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपको रिटर्न हो जाएगी। सिमिलरली मिन फंक्शन, जिस तरह से मैक्स फंक्शन आपको मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करता है, इन द सेम वे min function will return the minimum value from a particular field. सपोज हायर डेट, सेल और सैलरी, मार्क्स, कोई भी कॉलम है आपका वो पास कीजिए और उसमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट फंक्शन इज सम, जो भी न्यूमेरिक फील्ड की वैल्यू को पास करेंगे आप, उसकी जो वैल्यूज हैं उनका टोटल आपको डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। तो यू कैन सी सेलेक्ट सम सेल, सेल इज अ नेम ऑफ कॉलम, टोटल सैलरी उसके ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा फ्रॉम EMP। सो these are the some aggregate or group functions. So as you come to know कि there are two types of function, one is single row और scalar function we can say, जो single row पे काम करते हैं, और some are multiple rows or we can say group or aggregate function that are discussed right now. So single row function work with a single row at a time. A single row function returns the result for every row of a query table. Multiple rows or group of functions or group functions work with data of multiple rows at a time and returns aggregate values. So let us discuss grouping result group by clause. Group by clause combines all those records that have identical values or same values in a particular field or a group of fields. This grouping results into one summary record per group. यानी कि क्या होता है, जो भी सेम वैल्यूज होती हैं जहाँ जहाँ, उनका एक अलग ग्रुप बन जाता है और हर ग्रुप के लिए रिजल्ट अलग से शो होता है। सपोज यू वांट टू नो द टोटल सैलरी डिपार्टमेंट वाइज, तो हर डिपार्टमेंट में सपोज एक टेबल है, उसके अंदर आपके अलग अलग डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट और साइंस डिपार्टमेंट, मैथ डिपार्टमेंट, हिंदी डिपार्टमेंट। तो क्या होगा, अगर आप सीधी सी कमांड लगाएंगे सेलेक्ट सम सैलरी, तो सबका एक ही टोटल आएगा। अगर आप करेंगे सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा सम सैलरी, ओके, और ग्रुप बाई करेंगे उसके अंदर डिपार्टमेंट, तो हर डिपार्टमेंट का एक अलग ग्रुप बन जाएगा। Let's try to understand with an example. For example, to calculate the number of employees in each grade, use this command select job. एक तो आप ग्रुप बाई में ध्यान रखिए, जब भी आपको ग्रुप बाई कमांड देनी है या ग्रुप बाई क्लोज का यूज़ करना है, तो सेलेक्ट के बाद हमेशा सबसे पहले उस फील्ड का नाम लिखिए जिसके साथ आप ग्रुप बाई कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है कि उस पर्टिकुलर फील्ड की वैल्यू उसके साथ आ जाएंगी, पता लगेगा कि ये कौन सी फील्ड की वैल्यू है। जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं ग्रुप बाई जॉब लिखा हुआ है और सबसे ऊपर लिखा है सेलेक्ट जॉब। अब अगर आप करते हैं ग्रुप बाई डिपार्टमेंट नेम, तो सबसे पहले लिखिए सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम। अगर आप करते हैं ग्रुप बाई कोई और फील्ड का नाम, तो सेलेक्ट के बाद सबसे पहले उसका नाम लिखिए, फिर कॉमा काउंट स्टार। देखिए इसके अंदर एक एग्रीगेट फंक्शन यूज़ ज़रूर होगा, चाहे आप काउंट यूज़ कीजिए, चाहे आप सम यूज़ कीजिए, चाहे मिन यूज़ कीजिए, चाहे एवीजी यूज़ कीजिए, मैक्स यूज़ कीजिए, व्हाटएवर। तो सबसे पहले आप सेलेक्ट लिखेंगे, फिर उस फील्ड का नाम लिखेंगे जिसके साथ आप ग्रुप बाई यूज़ कर रहे हैं, फिर एक आप फंक्शन का नाम लिखेंगे कोई भी, जैसे कि यहाँ काउंट स्टार फ्रॉम EMPL ग्रुप बाई जॉब। तो अब क्या होगा, जॉब के अकॉर्डिंग जितने भी ग्रुप होंगे उनके
जैसे एनालिस्ट है इसके अंदर, उसके अंदर 2 रिकॉर्ड हैं, क्लर्क के 4 रिकॉर्ड हैं, मैनेजर के 3 हैं, प्रेसिडेंट 1 है, सेल्समैन 4 रिकॉर्ड हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ग्रुप बाय क्लॉज हो जाएगा। सो ग्रुप बाय अप्लाइज द एग्रीगेट फंक्शन independently to a series of groups that are defined by having a field value in common. So let's take another example. Select डेप्ट NO यानी कि डिपार्टमेंट नंबर, कॉमा काउंट स्टार, कॉमा सम सैलरी फ्रॉम EMP ग्रुप बाई डेप्ट NO यानी कि डिपार्टमेंट नंबर। तो देखिए आप यहाँ पे ग्रुप बाई डिपार्टमेंट नंबर लिखा है, तो सेलेक्ट के बाद सबसे पहले उसी फील्ड का नाम लिखा है। सो स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, वाई वी आर राइटिंग दिस। नाउ यू कैन सी एंड अंडरस्टैंड विद दिस एग्जाम्पल। अब देखिए 10, 20, 30 उसमें 3 टाइप के डिपार्टमेंट नंबर थे, तो ऊपर आपका लिखा हुआ आ गया डिपार्टमेंट नंबर ये हैं। अब अगर हम ये नहीं लिखते सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, तो खाली हमारे 10, 20 या जो भी काउंट स्टार आता है वो क्या पता हमें किस डिपार्टमेंट का है। तो इसलिए आपको ये लिखना ज़रूरी है। सो यू कैन सी डिपार्टमेंट नंबर आ गए। 10 के अंदर 3 रिकॉर्ड्स हैं, 20 के अंदर 5 हैं और 30 के अंदर 6 हैं। और उन 2 की सैलरी का सम 87050, 10,885 और 9,400। सो ग्रुप वाइज इन्होंने अलग अलग सम दिया है। अगर हम ग्रुप बाई नहीं करते तो सबका एक ही रिजल्ट आता है, एक ही टोटल, एक ही वैल्यू आती सबकी। सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। यू कैन सी सम मोर एग्जाम्पल। सेलेक्ट डेप्ट NO, काउंट EMP NO। उसके बाद स्टार नहीं लिखा है, एम्प्लॉय नंबर काउंट करने हैं from EMP group by department number. So you can see the output accordingly, right? So there are some more examples. You can see accordingly, you can see the output. Now placing condition on ग्रुप्स। जब भी आपको ग्रुप बाई क्लॉज के साथ कंडीशन लगानी है तो आप वेयर यूज नहीं करेंगे, हैविंग क्लॉज आपको यूज करना है। द हैविंग क्लॉज प्लेसेस कंडीशन ऑन ग्रुप्स इन द कॉन्ट्रास्ट टू वेयर क्लॉज। जैसे कि आप नॉर्मल कोई भी माइस्क्यूएल क्वेरी लगाते हैं तो कंडीशन के लिए वेयर क्लॉज यूज करते हैं, बट आपको ग्रुप बाई क्लॉज के अंदर वेयर क्लॉज यूज नहीं करना है बल्कि हैविंग क्लॉज यूज करना है अगर आपको कोई भी कंडीशन लगानी है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी सेलेक्ट AVG ग्रॉस। ग्रॉस नाम का फील्ड है, उसकी एवरेज निकालनी है, कॉमा सम ग्रॉस उसका टोटल करना है फ्रॉम एम्प्लॉई ग्रुप बाय ग्रेड हैविंग ग्रेड इक्वल टू E4। अब इसके अंदर जो कंडीशन लगी है वो E4 है, तो मतलब जिनका ग्रेड E4 होगा उन्हीं को वो इंक्लूड करेगा। सो दिस कंडीशन वुड बी एप्लीकेबल ऑन ग्रुप एंड नॉट ऑन द इंडिविजुअल रो। To display the job where the number of employees is less than 3. So you can see select job comma count star from EMP group by job having count star। count star का मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड काउंट करेगा, लेस देन 3, तो जिनके नंबर ऑफ रिकॉर्ड लेस देन 3 हैं उसको ही इंक्लूड करेगा। यू कैन सी द आउटपुट। The having clause can contain either a simple Boolean expression, an expression or condition that results into true or false. For example, select department number, average commission, average salary from EMP group by department number, having AVG commission greater than 750 and AVG सेल ग्रेटर देन 2000। तो इस तरह से भी आप कंडीशन लगा सकते हैं इसके अंदर, राइट। वी कैन ऑल्सो यूज द एग्रीगेट फंक्शंस इन द हैविंग क्लॉज even it is not in the select list. Consider the following query.
select department number, comma, average salary from EMP, group by department number, having count star less than equal to 3. So we can also use in or between clause. आप इन क्लॉज का यूज भी कर सकते हैं, बट आप ध्यान रखिए इसके अंदर आप ग्रुप बाय क्लॉज के अंदर आप वेयर क्लॉज का यूज नहीं करेंगे, हैविंग क्लॉज का यूज करना है। क्वेरी आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं। यू कैन सी अनदर एग्जांपल, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, कॉमा जॉब, कॉमा एवीजी सैलरी फ्रॉम ईएमपी, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, कॉमा जॉब, हैविंग जॉब इन दो इनको शामिल करेगा, क्लर्क और सेल्समैन को। तो यू कैन सी आप बिटवीन क्लॉज भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट यू कैन सी सेमीकोलन जहाँ लग जाता है वहाँ आपकी कमांड एंड हो गई है। ये सेकंड कमांड है आपकी सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर वाली। आप बिटवीन क्लॉज का यूज कर सकते हैं। ओके, नॉन ग्रुप एक्सप्रेशन विद द ग्रुप बाय, एज मेंशन बिफोर, इफ यू इंक्लूड ए नॉन ग्रुप एक्सप्रेशन इन द सिलेक्ट लिस्ट ऑफ ए क्वेरी विद द ग्रुप बाय क्लॉज, MySQL विल नॉट प्रोड्यूस एनी एरर। कोई एरर तो नहीं देगा, बट आपका आउटपुट जो है मीनिंगफुल नहीं बनेगा। रादर इट विल पिक value of the group specified non-group field from the field first row of the group, but we do not recommend this practice because it will produce ambiguous result। आपको कुछ पता नहीं लगेगा क्या आया है। जैसे सेलेक्ट ई नेम कर दिया आपने यहाँ, कॉमा सम सैलरी। मैंने बताया था कि ग्रुप बाई में जो भी आप फील्ड ग्रुप बाई के साथ जो फील्ड का नाम लिखिए पहले उसका नाम लिखिए, लेकिन यहाँ आउटपुट तो देगा ये, बट वो मीनिंगफुल आउटपुट नहीं होता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर नाउ हाउ वी कैन यूज द ग्रुप बाय क्लोज। सो यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑफ सम क्वेश्चन आंसर्स दैट आर गिवन एट द एंड ऑफ दिस 7th चैप्टर, राइट? Okay, do the practice of these questions that are given. You can see the table customer, table activity, table coach. There are so many tables are given for your practice. Okay, I think now everything is clear to you. Okay, thank you.